प्रार्थना करें। Please repeat this prayer with me. आप लोग मेरे पीछे पीछे प्रार्थना करें। Thank you, Jesus, for loving me so much. धन्यवाद यीशु, आप हमें बहुतायत से प्रेम करने के लिए। Thank you, Father, for loving me so much. पिता, हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं आपका प्रेम के प्रति। Thank you, Holy Spirit, for helping me. पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं आपकी सहायता के लिए। We thank you for your grace. हम हमको धन्यवाद करते हैं खुदा आपकी अनुग्रह के लिए। We thank you for every teacher, every teaching. हम हर एक शिक्षक के लिए और हर एक शिक्षा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। We thank you for helping us to grow in grace, in love, in blessings. अनुग्रह और आशीष में और प्रेम में बढ़ाने के लिए धन्यवाद प्रभु। बढ़ाने के लिए धन्यवाद प्रभु। All the plans of Satan be broken in Jesus' name. हर एक शैतान की योजनाओं को यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ते हैं खुदा। Jesus is the Lord of my life. यीशु मेरे जीवन का प्रभु है। This is your time. ये आपका समय है खुदा। Help me to learn more about Jesus and to become like Christ. मुझे सहायता कीजिए खुदा, ताकि मैं यीशु के लिए और भी जान सकूं। I love you. In Jesus' name I agree and I pray. मैं आपको प्रेम करता हूं खुदा, और यीशु के नाम से हम प्रार्थना करता है खुदा। Amen. आमीन। Shalom. Now let us talk about the discipleship. अभी हम लोग चेलेपन के बारे में बात करेंगे। शिष्यत्व के बारे में बात करें। School of discipleship. Number 1. शिष्यत्व की पाठशाला। Who is a disciple? पहला, शिष्य कौन होता है या चेला कौन होता है? Who is a disciple? चेला कौन होता है? चेला कौन है? What are the conditions or requirements? Requirements of What are the requirements or conditions of a discipleship? चेले बनने का जरूरतें क्या है? What are the requirements? What are the conditions of the disciple? What is the work of a disciple? चेले का काम क्या है? दूसरा, Work. चेले बनने का आवश्यकता या चेले होने का मांग क्या है? तीसरा, चेले का काम क्या है? Work of a disciple. चेले का काम। The characteristics of a disciple. What are the characteristics? What is the character of a disciple? चेले का चरित्र क्या होना चाहिए? What is the character of a disciple? Characteristics of a disciple. The promises of a disciple.
What are the promises of a disciple? What are the promises of a disciple? चेला होने का वादा क्या है? There are many things, बहुत कुछ है, but I would like to give you an outline. I'm not going to give you detailed information, detailed study. मैं गहराई शिक्षा में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं आउटलाइंस आपको समझाते जा रहा हूँ। This is the history of from Adam till now. Holy Bible talks about from Adam till now and till we meet Lord Jesus Christ. आदम से लेकर अभी तक ये बाइबल बात करता है और प्रभु यीशु मसीह को मिलने तक ये बाइबल में सारे वचने हमारे लिए हैं। It is a school, it is not a college. ये एक पाठशाला है, ये कॉलेज नहीं है। In the school we have a discipline. ये पाठशाला में विशेष करके इधर डिसिप्लिन रहता है। And disciple, who is a disciple? चेला कौन होता है? Disciple is a person who is disciplined follower of Jesus Christ. चले वो होता है जो नियम के अनुसार से यीशु के पीछे चलता है। Say everybody. Disciple is a person who follows, who is disciplined follower of Jesus. चले वो होता है जो नियम के अनुसार से यीशु के पीछे चलता है। A disciplined follower of Jesus Christ is called disciple of Jesus. नियम के अनुसार से यीशु के पीछे चलने वाला ही चला है। बोलिए, नियम के अनुसार से यीशु के पीछे चलने वाला ही चला है। There is a difference between a believer, विश्वासी और disciple. चेला। Believer is a person who believes in heart that Jesus Christ of Nazareth died on the cross and rose again after 3 days. विश्वासी वो होता है यीशु मसीह को अपना जीवन में ग्रहण करके और यीशु मसीह मेरे लिए मरा है और 3 दिन के बाद जी उठा बोल के विश्वास करने वाला विश्वासी होता है। Number one, who believes in Christ, life, death, resurrection, soon coming, his works. यीशु मसीह को जो विश्वास करता है उसका मृत्यु को, उसका पुनरुत्थान को और उसका आने वाला को जो विश्वास करता है वही विश्वासी है। Number two, who repents for their sins. दूसरा, जो अपना पापों से मन फिराता है and confesses his sins that I am a sinner. और अपना पापों को अंगीकार करके बोलते हैं मैं पापी हूँ, Please forgive me. मुझे क्षमा कीजिए। John's first letter, chapter 1, verses 7 to 10. पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 से लेकर 10 पद में लिखा है होगा। As he is the light, if you walk in the light and have fellowship with him, the blood of Jesus cleanses us from all sins. वो जैसे ज्योति में है, यदि तू भी ज्योति में चले और उसके साथ सहभागी रखे तो यीशु का लहू हम सभी को हमारा पापों से शुद्ध करता है। Number 3, confession, confessing that Jesus is Son of God. Jesus is God. और तीसरा, वो विश्वासी होता है जो अपना मुंह से अंगीकार करता है कि यीशु ही मसीह है। And number 4, obeys his word. If you love me, you will obey my commands. चौथा, वो होता है जो आज्ञाकारी होता है। John 14:15. यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 15 पद में लिखा है। Number 5, who takes water baptism. और पांचवा, जो पानी का बपतिस्मा लेता है वही विश्वासी है। If you haven't taken water baptism, you are no more called the member of the body of Christ. यदि आप पानी का बपतिस्मा नहीं लिया तो आप मसीह का देह का भाग कभी नहीं हो सकते हैं।
It is a requirement to be a member in the body of Christ. वो एक आवश्यकता है पानी का बपतिस्म, ताकि आप मसीह का देह का एक भाग बनने का। Praise be to Jesus. यीशु की महिमा हो। These are the 5 things that we need to have. ये विश्वासी का जीवन में 5 चीज हमको दिखने के लिए मिलता है। And number 6, praise to Father Jehovah in the name of Jesus. पिता यहोवा को यीशु के नाम से प्रार्थना करने वाला विश्वासी है। Number 7, 7वां, who has a fellowship with the church. और जो कलीसिया के साथ संगति करता है वो विश्वासी होता है। These are the 7 things that we need to have to be a believer. ये 7 चीज होना चाहिए ताकि हम एक विश्वासी बने। Who is a disciple? कौन है? चेला कौन होता है? Number 1, follower of Jesus. पहला, यीशु का पीछे चलने वाला। A person who follows Modi is not a disciple of Jesus. एक व्यक्ति जो मोदी के पीछे चलता है वो कभी भी यीशु का चेला नहीं बन सकता। A person who follows the politics, a person who follows the film industry, Bollywood, or a person who follows the tradition, culture, money, world, things, he is not called disciple of Jesus. एक व्यक्ति जो राजनीति का पीछे करता है और फिल्म इंडस्ट्री का पीछे करता है, या परंपराओं का पीछे, जाति भेद के पीछे, या किसी भी चीज यीशु को छोड़कर किसी भी चीज के पीछे जाए, चाहे वो धन हो, संपत्ति हो, वो कभी भी यीशु का चेला नहीं बन पाएगा। Matthew chapter 4 verse 19, Lord Jesus said, follow me, I will make you fishers of men. मत्ती रचित सुसमाचार 4:19 में लिखा है कि मेरे पीछे ओलो, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआ बनाऊंगा। Follow me, Lord Jesus said. यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे चले आओ। Followers of Jesus Christ are called disciples. जो लोग यीशु का पीछे चलते हैं वही चले होता है। Now whom are you following? तो आप किसका पीछे कर रहा है? Are you following your culture, your tradition, your community? आपका जाति को, आपका समाज को, आपकी परंपराओं का पीछे कर रहा है क्या? Are you following your language, your territorial beliefs? आपका भाषा, लोगों को ही प्रेम करना, अपना ही लोगों को, अपना ही बाउंड्री में रहने वालों को प्रेम करने वाला जैसा आप है क्या? Are you following your casteism? आप अपना कैस्टिज्म को बहुत प्रेम करते हैं क्या? उसके पीछे चल रहे हैं क्या? Are you following the education of the world system? या आप अपना पढ़ाई के पीछे चलते हुए इस संसार की रीति रिवाज के अनुसार से चल रहे हैं क्या? Whom are you following? आप किसका पीछे चल रहा है? Do you follow Jesus? आप यीशु का पीछे चलता है क्या? Or do you follow the world? नहीं तो आप संसार का पीछे चलता है। God wants believers to become disciples through the power of the Holy Spirit. परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी चेला बने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। We are living in the last days. हम लोग अंत के दिनों में जीवन जी रहा है। Lord Jesus is coming again. यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। He is not coming for the world second time. वो संसार के लिए नहीं आ रहा है दूसरा बार। Jesus is coming again for the church. यीशु मसीह फिर एक बार अपनी कलीसिया को ले जाने के लिए आ रहा है। Jesus is coming again for the church. यीशु मसीह अपना कलीसिया को ले जाने के लिए आ रहा है। He is not coming again for the world. वो संसार के लिए नहीं आ रहा है। Believer is a member of the body of Christ. विश्वासी ही मसीह का एक सहभागी हो सकता है। Disciple is a follower of Jesus. There is a difference between a believer and disciple of Jesus. विश्वासी और चेले के बीच में बहुत फर्क है। Do you agree with me? मेरे साथ अंगीकार करता है कि नहीं करते हैं? Do you want to follow Jesus? आप यीशु के पीछे चलना चाहता है क्या? If you want to follow Jesus, you need to obey His word. यदि आप यीशु का पीछे चलना चाहता है तो आप उसकी आज्ञाओं को अंगीकार करना पड़ेगा। What did disciples do? ये चेले लोग क्या करते हैं? When they heard the voice of God, when Jesus said, "Follow me, I'll make you fishers of men," they left
their necks and followed Jesus. हम देख सकते हैं जब यीशु ने उनका लोगों से कहा है मेरे पीछे चलो, वो लोग तुरंत ही अपना जाल को, अपना नाव को छोड़कर तुरंत ही यीशु के पीछे चले आया। Leave the tradition, leave the community, leave the casteism, leave your traditional beliefs and follow Jesus. आप अपना जाति को, अपना परंपरा को और अपना ही भाषा की परिवर्ती को आप छोड़ दीजिए और यीशु का पीछे चलिए। Disciple is a student. ये जो चेला है वो एक विद्यार्थी है। Student till we meet Jesus Christ. यीशु को फिर एक बार मिलने तक वो विद्यार्थी ही रहेगा। Disciple learns at the feet of Jesus. ये चेले जो है वो यीशु के चरणों में सीखता रहेगा। What are the requirements? अभी क्या क्या मांग है, चेला बनने के लिए मांग क्या है? In the New Testament, you will find many groups of disciples. हम देख सकता है नया नियम में बहुत सारे झुंडों को, चेला का झुंडों को देख सकते हैं। Pharisees, Sadducees say to Lord Jesus, "Who are you to teach us? We are the disciples of Moses." वो फारसी और सादुसी ने यीशु से कहता है, आप कौन है हमें सिखाने के लिए? हम मूसा की चेले हैं बोल के कहता है। And during the time of Lord Jesus, there were disciples of John the Baptist. हम देख सकते हैं यीशु मसीह के समय में ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को भी चेले थे। There were many Pharisees and many Sadducees who were following the Torah. बहुत सारा फारसी और सादुसी है जो तोरा को मानता है। But thanks be to Jesus for His grace, for His presence in our lives. प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद हो उसके अनुग्रह के लिए और उसकी उपस्थिति के लिए जो हमारा जीवन में है। The purpose of a disciple. What is the purpose? ये चेले का उद्देश्य क्या है? There is a purpose. चेले होने के लिए एक उद्देश्य है। Purpose of disciple is to know Him चेले का उद्देश्य है परमेश्वर को और भी जानने का and to become like Christ. और उसके जैसे बनने का। Praise be to Jesus. यीशु की महिमा हो। There are only two things. दो ही चीज है। Why Bible has given to you and I? बाइबल आपको और मुझको क्यों दिया गया है? To know who is your God. आप अपना परमेश्वर कौन है जानने के लिए दिया गया है। Number two, you and I need to become like Christ. दूसरा, आप और मैं उनके जैसा बनने के लिए दिया गया है। Bible talks about the God of Abraham, Isaac and Jacob. बाइबल अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर के बारे में बात करता है। God revealed Himself to chosen generation, Israel and the Israelites. परमेश्वर इज़राइल जन को अपने आप को प्रकट किया है। Moses was there at the burning bush. मूसा वो उस आग की झाड़ी में था, झाड़ी के पास था। God revealed Himself. Moses. परमेश्वर अपने आप को मूसा को प्रकट किया। Moses did not know name of God. Moses did not know power of God. Moses did not know purpose of God. Moses did not know plan of God. हम देख सकता है मूसा परमेश्वर का नाम को नहीं जानता था, मूसा परमेश्वर का सामर्थ्य को नहीं जानता था, मूसा परमेश्वर का उद्देश्य को नहीं जानता था, मूसा परमेश्वर का योजना को नहीं जानता था। He was well educated. वो बहुत ही पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति था मूसा। He was in the palace of Pharaoh for 40 years. फारो की राज भवन में वो 40 साल जिया था। He knows how to fight with archery. He knows archery. वो लोगों से कैसे युद्ध करना वो जानता है। He knows horse riding. He knows fighting with the enemies with the weapons. घोड़ा चलाना उसको आता है, हथियार लेके दूसरों के साथ मारपीट करना उसको आता है। He was a trained soldier. He was a trained man in the palace of Pharaoh. हम देख सकते हैं फारो की राज भवन में एक अच्छा से शिक्षा पाया हुआ एक योद्धा है वो। But did he know God? मगर क्या वो परमेश्वर को जानता था? No. नहीं। He didn't know God. उनको परमेश्वर को नहीं जानता था।
purpose of a disciple is to know who is your God, who is your Lord, who you belong to. चला का उद्देश्य है परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है और हम किसका है बोल के जानना बहुत ही जरूरी है। The purpose of a disciple. Number one, to know. चेले का उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला, You know Him who is your God. परमेश्वर को और भी जानने का या परमेश्वर को जानने का। To know Him, to know His love. उसका प्रेम को जानने का। चेले का उद्देश्य क्या होता है? उसको जानने का और उसका प्रेम को जानने का, उसका योजना को जानने का, and to become like Christ. और उसके समान बनने का। And to make Him to be known. और उसको दूसरों को बताने का, जो लोग नहीं जानते उनको बताने का। This is the purpose of a disciple. ये चेले का उद्देश्य है। Number one, to know Him. पहले उसको जानने का। Number two, to know His love. दूसरा उसका प्रेम को जानने का। To know His plan. उसका योजना को जानने का। And to become like Christ. और मसीह के समान बनने का। And to make Him to be known. और दूसरों को उसको प्रकट करने का। This is the purpose of a disciple. ये है चेले का उद्देश्य। This is the purpose of the Holy Bible. यही बाइबल का उद्देश्य है। Dear saints and servants of God, प्रिय पवित्र प्रभु का जन, let me read a few verses to bless you. मैं आपको आशीष देने के लिए कुछ वचनों को मुझे पढ़ने दीजिए। First book of John, chapter 5, verse 20. पहला यूहन्ना, First book of John, chapter 5, verse 20. पहला यूहन्ना 5 अध्याय 20 पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। What does Bible say? And we know that the Son of God has come and has given us an understanding that we may know Him who is true. हम यह And भी we are in Him who is true. And in His Son, Jesus Christ, this is the true God and the eternal life. हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझा दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। This is the purpose of a disciple. यही चेले का उद्देश्य है। John chapter 20 verse I think 31. Let me read first. Let me check and read. यूहन्ना रचित सुसमाचार हम पढ़ेंगे 20 अध्याय। Let me check. Lord Jesus says, यीशु मसीह कहा है chapter 20 verse 19. 20 Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst and said to them, Peace be with you. And 20, verse 20, when he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. 20 and 21. हम देख सकते हैं 20 और 21 और यह के 19, 20. हम 19 और 20 को हम देखेंगे। 20 यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 का 19 और 20
उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। Amen. आमेन। Praise be to Jesus. यीशु की महिमा हो। And John the Gospel chapter 17 reveals the truth. यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय सच्चाई को प्रकट करता है। John 17:3. यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 का 3 हम देख सकता है। Let me read it for you. आपके लिए मुझे पढ़ने दीजिए। This is eternal life, that they may know you, the only true God, Jesus Christ, whom you have sent. और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। Amen. आमेन। And when you read the whole chapter, he says, I know Father Jehovah, and I reveal to you Father Jehovah, and I want you to go and testify what you hear from me. हम देख सकते हैं पूरा 17 अध्याय यदि पढ़े तो यीशु ने कहता है, मैं पिता यहोवा को जानता हूँ और मैं यहोवा को तुझ पर प्रकट किया हूँ, आप भी लोग जाकर आप भी प्रकट कीजिए बोल के कहता है। John 3:16 says, सुसमाचार 3:16 कहता है, For God so loved the world, so he gave his only begotten Son, whosoever believes in him shall not perish but have lasting life. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने उसका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया, जो लोग उसको विश्वास करते हैं नाश नहीं होता है परंतु अनंत जीवन पाता है बोल के लिखा है। Holy Bible talks about the love of Father Jehovah. पवित्र बाइबल यहोवा की प्रेम के बारे में बात करता है। From Genesis to Revelation, what do you find? We find the love of God. उत्पत्ति पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हमें क्या मिलता है? वो परमेश्वर का प्रेम मिलता है। Love of God for the mankind. परमेश्वर का प्रेम मनुष्य वाले के लिए। Man, how does man come to know the love? कैसे एक व्यक्ति प्रेम को जान सकता है? Through the power of the Holy Spirit. केवल और केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। Purpose of a disciple is to know His love for us. चेले का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर का प्रेम को हमारे प्रति जो है वो जानने का। Purpose of a disciple is to receive His love. और जो उद्देश्य है चेले का वो क्या है? वो यीशु का प्रेम को स्वीकार करने का। His plan is for you and I, we should receive His love. उसका योजना जो है आपके लिए और मेरे लिए, वो परमेश्वर उसका प्रेम को स्वीकार करने के लिए है। The purpose of a disciple is to become like Christ. हम देख सकते हैं वो जो उद्देश्य है चले का वो मसीह के जैसा बनने का। The purpose of a disciple is to make the whole world to know that Jesus is the Savior of the whole world. और चेले का उद्देश्य यह है कि पूरा संसार को यीशु मसीह को प्रकट करने का। So we are here for the school of discipleship. इसीलिए हम लोग इस जगह में चेले का पाठशाला में हैं। Praise be to Jesus. यीशु की महिमा हो। Dear saints and servants of God. प्रिय पवित्र प्रभु का जन। What are the requirements? मांग क्या है चेला बनने के लिए? What are the requirements? चेला बनने के लिए मांग क्या है? Number 1, follow Jesus. पहला आप यीशु का पीछे चलिए। Requirements. दूसरा सवाल का हम जवाब दे रहा है। Requirements to be a disciple. Follow Jesus. चेले बनने का मांग क्या है? यीशु के पीछे चलना। Matthew 4 verse 19. मत्ती रचित सुसमाचार 4 का 19। Lord Jesus says, follow me, I'll make you fishers of men. यीशु ने कहा मेरे पीछे चले आओ, मैं मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआ बनाऊंगा। Number 2, love Him more than anyone, anything in this world. दूसरा सबसे ज्यादा और सबसे प्रथम उसको प्रेम करने का। Love Him more.
उसको सबसे ज्यादा प्रेम करने का। If anyone loves mother, father, brother, sister more than me, they do not belong to me. माता पिता भाई बहन चाहे कोई भी क्यों ना हो, मुझसे अधिक आप किसी से प्रेम करता है वो मेरा योग्य नहीं है। If anyone loves the things of the world, love of Father will not be in them. यदि कोई संसार की वस्तुओं को प्रेम करता है, उनके अंदर में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। If anyone loves the things of the world, what are there in this world? Lust of eyes, lust of flesh, and the pride of life. इस संसार का चीज में यदि संसार की चीज को कोई प्रेम करता है, इस संसार में क्या है? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन का गमन। If anyone loves mother, father, brother, sister, profession, casteism, language, community, tradition, things of the world, people of the world, more than God, they do not belong to Jesus. यदि माता पिता भाई बहन जाति भाषा और जो संसार में है, चाहे वो कुछ भी चीज परमेश्वर से ज्यादा यदि कोई किसी को प्यार करता है, वो परमेश्वर का तुल्य नहीं है, परमेश्वर का योग्य नहीं है। Matthew chapter 10 verse 37 to 39. मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 37 से लेकर 39 तक। Number 3. Number 3. Deny yourself to follow. Deny yourself. Deny yourself to follow Jesus. अपने आप को इनकार करना। If you don't want to deny yourself, you cannot be a disciple. अपने आप को यदि इनकार नहीं कर पा रहे तो आप कभी भी चला नहीं बन पाएगा। Matthew chapter 10 verse 38. मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 38 पद। Matthew chapter 10 verse 38. मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय और 38 पद। Let me read it for you. मैं आपके लिए कुछ को पढ़ने दीजिए। It is written, and he who does not take his cross and follow after me, he is not worthy of me. और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, वह मेरा योग्य नहीं है। He who finds his life will lose it, and he who loses his life. Let me read one more verse. Matthew 16:24. मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 24 पद को हम पढ़ेंगे। 16:24. मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 24 पद। It is written, then Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे ओले। Matthew 16:24. मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 24 पद। And number 4, requirements to become a disciple, sacrifice. चौथा चेला बनने का मार्ग जो है वो है बलिदान रहना जरूरी है, या बलिदान की दिल या हृदय रहना जरूरी है। If you sacrifice your life, he will give you life. यदि आप अपना जीवन को भी बलिदान करने के लिए तैयार है तो परमेश्वर आपको जीवन देगा। Christ sacrificed his life on the cross. यीशु मसीह अपना जीवन को उस क्रूस पर बलिदान किया है To save you and me. आपको और मुझको बचाने के लिए वो बलिदान हुआ है। Christ Jesus is the risen Savior of the whole world. यीशु मसीह जो है वो पुनरुत्थान उद्धार करता है। You and I need to have requirements. आपको और मुझको मांग, ये सारे मांग बहुत ही जरूरी है। What is the work of a disciple? चेले का काम क्या होता है? Work of a disciple. I'm giving you outlines. Work of a disciple. Number 1, every disciple follows Lord Jesus Christ. चेले का काम क्या होता है? Follows Jesus. हर एक चेला यीशु का पीछे चलता है। Matthew 4:19. मत्ती रचित सुसमाचार 4 का 19। And work of a disciple is you and I are the salt of the earth and the light of the world. We are the salt and light of the world. और वो काम वो है, हम इस जगत के लिए नमक है और साथ ही साथ इस जगत की ज्योति हम हैं। We are the salt and light of the world. हम लोग नमक और इस जगत की नमक और ज्योति हैं।
Matthew 5, 13 to 16. मत्ती रचित सुसमाचार 5 का 13 से लेकर 16 तक। Work of a disciple. Number 3. Go and preach the gospel to all creature. जाओ, जाकर जाति जाति को सुसमाचार सुनाओ। Go and preach. Mark chapter 16 verse 15. मार्कुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 15 पद। Go and preach the gospel to all creature. जाओ, जाकर अन्य जाति जाति को सुसमाचार सुनाओ। I want you to open your Bible to the Matthew chapter 28 verses 18 to 20. मैं चाहता हूं आप लोग अपना बाइबल को मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 19-20 को खोलिए। There is no time. अभी समय नहीं है। Lord Jesus is coming again. यीशु मसीह फिर लौट के आने वाला है। Be ready. तैयार रहिए। Repent for your sins and return to Christ Jesus. अपने पापों के प्रति मन फिराकर पश्चाताप करके यीशु की ओर आइए। Lord Jesus loves you. यीशु मसीह आपको बहुत प्यार करता है। I'm here today to tell you the truth. आज मैं इधर इसीलिए हूँ ताकि आपको मैं सत्य बताने के लिए हूँ। Matthew 28 verses 18 onwards. मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 18 पद से लिखा है। And Jesus came and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And go, I am with you always, even to the end of the age. Amen. यीशु ने उनको Repeat that with you. Verse by verse. Ask them to repeat. आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। Amen. Praise be to Jesus. यीशु की महिमा हो। Work of a disciple is to go to the nations to preach the gospel. चेले का काम है जाकर यीशु की सुसमाचार जातियों को सुनाने का। Make disciples. चेलों को बनाना। Baptize people. लोगों को बपतिस्मा देना। Baptize people in the name of Father, in the name of Jesus, in the name of the Holy Spirit. लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देने का। Lord Jesus said to one of the disciples, Peter, do you love me? यीशु ने उसका चेलों में से एक चेले से कहा, पतरस मुझसे प्रेम करता है क्या? Peter, do you love me? पतरस मुझे प्रेम करता है क्या? What did Peter say? पतरस ने क्या कहा? Yes, Lord, I love you. उसने कहा, हाँ प्रभु मैं प्रेम करता हूँ। Peter, पतरस, go and feed my sheep. जाओ जाकर मेरा भेड़ को चराओ। Feed my sheep. मेरे भेड़ को चराओ। Feed my sheep. Work of a disciple. मेरे भेड़ को चराओ। Number 7, witness Christ. सातवां, यीशु की गवाह ठहरना। Witness Christ. John, the Gospel. यूहन्ना रचित सुसमाचार 15, 16, and John the Gospel. John the Gospel. Let us read. यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 का 16 और 17। No, the last verse. John 15, let me open. 26 and 27. 26 और 27 हम पढ़ेंगे 15 अध्याय का। John 15, 26 and 27. 15 अध्याय का 26 और 27। John 15, 26 and 27.
सुनाना सुसमाचार 15 अध्याय 26 और 27। But when the Helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth who proceeds from the Father, he will testify of me. And you also will bear witness, because you have been with me from the beginning. परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य की आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरा गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। Praise be to Jesus. यीशु की महिमा हो। Work of a disciple. चेलों का काम। Number one, follow Jesus. पहला यीशु के पीछे चलना। Number two, be a salt of the earth and be the light of the world. दूसरा, इस जगत के लिए नमक और इस जगत की ज्योति ठहरना। And number three, go and preach the gospel to all the nations. तीसरा, जाति जाति लोगों के पास जाकर सुसमाचार सुनाना। Number four, make disciples. और चौथा जो है वो चेला बनाना। Baptize them in the name of Father, in the name of Jesus, in the name of the Holy Spirit. पांचवा जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देना। Feed my sheep. भेड़ को चराना। Witness Christ. और यीशु के लिए गवाह ठहरना। What are the characteristics of a disciple? Characteristics. चेले का विशेषता चेलों का विशेषता क्या होना चाहिए? Character of a disciple. या चेले का चरित्र। Characteristics. चेला का चरित्र। Characteristics. स्वभाव, राइट? चेले का स्वभाव। Number one. पहला, Love. चेले का स्वभाव क्या होना चाहिए? पहला, उसके पास प्रेम होना चाहिए। If you love your neighbor, you will be called my disciple. That's what Lord Jesus said. यीशु मसीह ने कहा है, यदि आप अपना पड़ोस से प्रेम करता है तो आप मेरा चेला ठहरेगा। John 13, 34, 35. सुसमाचार 13 अध्याय का। If you love your neighbor, you will be called my disciple. आप अपना पड़ोस को प्रेम करता है तो आप मेरा चेला ठहरोगे। In the book of Acts, chapter 11, verse 26, followers of Christ Jesus are called Christians in the history of mankind first time. हम लोग देख सकता है प्रेरितों का पुस्तक 11 अध्याय का 26 पद में यीशु की चेले को पहले बार मसीही बोल के बुलाया गया है। Acts chapter 11 verse 26. प्रेरितों का पुस्तक में 11 अध्याय का 26 पद में लिखा गया है। And the characteristic of a disciple is to obey his command. और ये चेले का स्वभाव ये होता है यीशु की आज्ञाओं को मानने का। A person who obeys his word is called a disciple. एक व्यक्ति जो यीशु की आज्ञाओं को पालन करता है वही चेला होता है। Characteristic of a disciple is to have a fellowship. और जो चेले का स्वभाव जो होता है वो संगति में सदा रहता है। Fellowship with the church, fellowship with the word of God, fellowship with the Holy Spirit. कलीसिया के साथ संगति में रहता है, परमेश्वर का वचन के साथ संगति में रहता है, साथ ही साथ पवित्र आत्मा के साथ संगति में रहता है। Characteristic of a disciple is to have a prayer. हम देख He is सकता a है prayer warrior. ये जो चेले का स्वभाव और एक जो है वो है प्रार्थना का योद्धा रहता है वो। You and I will be having a life of prayer. आप और मैं एक प्रार्थना का जीवन रखना बहुत ही जरूरत है। Characteristic of a disciple is to be led by the Spirit of God. Be led by the Spirit of God. और एक स्वभाव है वो पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किया जाएगा। Be led by the Spirit of God. जो व्यक्ति पवित्र आत्मा की चाल चलते हैं वही चेला ठहरेगा। Characteristic of a disciple is to be bold. सतवा जो है वो Be bold. निरंतर इयाव से और सामर्थ्य से जीवन जिएगा। God did not give us a spirit of fear, but He gave us a power, love, and sound mind. परमेश्वर हमें भय की आत्मा नहीं दिया, परंतु हमें परमेश्वर ने सामर्थ्य की और प्रेम की और संयम की आत्मा दिया है। The book of Proverbs chapter 28 verse 1. The righteous will be bold like a lion. नीति वचन में लिखा है 28 का 1 में जो धर्मी है वो सिंह के समान अट्ठल और याव रहता है।
Study the word, meditate upon the word. आत्मा परमेश्वर का वचन को अध्ययन करता है। A disciple of Jesus studies the word and meditates upon the word of God. यीशु का चेला निरंतर परमेश्वर का वचन को अध्ययन करता है। Disciple of Jesus receives the gifts of the Holy Spirit. और चेला जो होता है वो निरंतर परमेश्वर की वरदानों को अपना जीवन में स्वीकार करता रहता है। Disciple of Jesus flows in the fruit of the Spirit. हम देख सकते हैं यीशु मसीह का चेला जो होता है वो आत्मा की फलों में बहता है। Disciple of Jesus humbles himself and follows Jesus. Lord Jesus humbled himself at the time of death till the cross, till the death. जैसे यीशु मसीह अपने आप को शून्य कर परमेश्वर के पीछे चला, वैसे ही उनकी चेले लोग भी नम्रता के साथ उसका पीछे चलना बहुत ही जरूरी है। Humility. नम्रता। John the Gospel chapter 13. यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय। Lord Jesus washed the feet of disciples. यीशु मसीह अपने चेलों की पांव को धोया है। And Lord Jesus said to his disciples, do it as I did it. यीशु ने उसकी चेलों से कहा है जैसे मैंने किया वैसे आप लोग भी किया करो। Follow the footprints of Jesus Christ of Nazareth. यीशु के कदमों के पीछे चलना सीखिए। Disciple is an accountable to the church, accountable to God, accountable to the family. ये जो चेला है वो कलीसिया के प्रति और परिवार के प्रति परमेश्वर के प्रति लेख देने वाला है। Lord Jesus is coming again. यीशु मसीह फिर से जल्दी आने वाला है। He is coming again to take the church to be with him forever. यीशु मसीह आने वाला था कि कलीसिया को उठाकर निरंतर अपने साथ रखने जा रहा है। Dear disciples of Jesus, there is no time. प्रिय यीशु मसीह के चेलों के समय नहीं है। Do not waste your time in this sinful world. अपना समय को इस खराब और पापी दुनिया में संसार में खराब मत कीजिए। Lord has chosen you. परमेश्वर आपको चुना है। Lord has anointed you. परमेश्वर आपको अभिषेक किया है। Lord has appointed you परमेश्वर आपको नियुक्त किया है to go and preach the gospel and to bear fruit. आप जाकर यीशु की सुसमाचार सुनाकर और फल लाए। Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे क्या? Thank you, dear Holy Spirit, for your help. प्रिय पवित्र आत्मा आपकी मदद के लिए धन्यवाद करते हैं। Say after me, thank you, Holy मेरे पीछे Spirit. पीछे बोलिए, प्रिय पवित्र आत्मा धन्यवाद हो। Thank you for helping me to know more about Jesus. धन्यवाद प्रभु मुझे सहायता करने के लिए। यीशु को जानने में आप मदद कर रहा है। Thank you for helping me to know the purpose of God in my life. परमेश्वर का उद्देश्य को जानने के लिए आप मुझे मदद कर रहा है। धन्यवाद प्रभु। Thank you, dear Holy Spirit, for helping me to receive the love of God. पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का प्रेम को स्वीकार करने का योग्य बनाया। Thank you, dear Holy Spirit, for helping me to know the plan and the will of God in my life. प्रिय पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की योजना और परमेश्वर का उद्देश्य को हमारे जीवन में जानने का मौका दिया। उद्देश्य को जानने का मौका दिया। Thank you for helping me to become like Christ. धन्यवाद मुझे मसीह के जैसा बनने के लिए मदद कर रहा है। Thank you, dear Holy Spirit, for helping me to become like Christ and to make him to be known to the world. धन्यवाद पवित्र आत्मा दूसरों को परमेश्वर का गुणों को प्रकट करने का मौका दे रहा है। Help me to follow Jesus. यीशु के पीछे चलने के लिए और भी मदद करो पवित्र आत्मा। Help me to be the salt of the earth and the light of the world. इस जगत की नमक और जगत की ज्योति बनने के लिए मुझे मदद कर पवित्र आत्मा। Help me to go to every nation to preach the gospel. जाति जाति लोगों के पास जाकर सुसमाचार बोलने के लिए मुझे मदद कर पवित्र आत्मा। Anoint me, lead me to make disciples of Jesus.
मुझे अभिषेक कर ताकि मैं यीशु के चेलों को बना सकूं। Help me to witness Christ. परमेश्वर मुझे सहायता कर ताकि मैं तेरा गवाह ठहरूं। I'm willing to live for Christ. आज से मैं यीशु के जीने के लिए तैयार हूँ। I'm willing to die for Christ. मैं यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। Thank you, Holy Spirit, for your help. धन्यवाद पवित्र आत्मा आपका मदद के लिए। Jesus is the Lord of my life. यीशु मसीह मेरा जीवन का प्रभु है। Jesus is the Lord of my future. यीशु मसीह मेरा भविष्य का प्रभु है। All the plans of Satan be broken in Jesus' name. हर एक शैतान की योजना यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं। I am under the blood of Jesus. मैं यीशु के लहू के अधीन में हूँ। My family is under the blood of Jesus. मेरा परिवार यीशु का लहू के अधीन में है। Thank you, Holy Spirit, धन्यवाद पवित्र आत्मा for your help and your guidance. आपका सहायता और आपकी अगुवाई के लिए। Jesus is alive inside of me. यीशु मसीह मुझ में जीवित है। I love you, Father. I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. In Jesus' name, I agree and I pray. यीशु मसीह के नाम से मैं अंगीकार करके प्रार्थना करता हूँ खुदा। Amen. Amen.